Hi everyone, this side the Studios Girl welcoming you back to my channel once again. And this video is all about Delhi University where I am today, and what I would say, it is a dream for many and it's dream for none. It's equally the thing is because कई बच्चे जो मेरी तरह होते हैं personally, they don't have any sort of aims or sort of dreams to dream, what I feel. because जब मैंने 12th अच्छे मार्क्स से पास की थी, आई वॉज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ ड्रीम कि मुझे वो कॉलेज चाहिए, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो नो, आई वॉज नॉट हैविंग एनी. बट मेरे पेरेंट्स के मन में थी डिसाइडिंग्स कुछ कि येस दे वांट टू मी टू बी हेयर एंड देयर एंड ऑल दैट. So yes, finally I landed at LSR, and it is a prestigious college of Delhi University. And today I'm there at red walls and all this lavisheries which people see outside the gates of our college, and they seem embanking that they want to be in that room and that floors. But yes, I would say it is a prestigious college. People still see it as one of the prestigious universities in the country. But yes, there are some setbacks too. People especially who are from private schools, I would like to say there is nothing bad, but yes, you'll be needing to change yourself very much. What I felt personally, that the first thing which was जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को ज़रूर लगेगा, वहाँ पे एसी नहीं है. दैट्स द हार्श रियलिटी. बट वहाँ पे एसी नहीं है, अदर देन लैब्स एंड आई थिंक स्टाफ रूम्स, दे डोंट हैव एसी. So that's the situation. And one thing more, that due to overrise in population and overrise in NTA's number of seats and selections, but the college doesn't have the infrastructure. That's the reality. Another reality, I think. So yes, population ज़्यादा है और seats का crunch रहता है. That doesn't seems like to be a person who is coming from a private school and found that कि तुम लेट आ गए तो तुम्हें सीट ही नहीं मिलेगी. So it seems थोड़ा सा अजीब. The other thing is कि other, like just like government banks, the administration is just like the government schools, what I would say, because it is a government university, so you need to face that too. बट मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट यस तुम लोग को थोड़ा सा अजीब लगेगा. बाकी आई थिंक LSR इज़ द बेस्ट. एनी गर्ल्स कॉलेज आई वुड फील, एटलीस्ट फॉर गर्ल्स. We as girls feel safe there anyhow, but whatever is outside the boundaries of the college is something else. But yes, at least in the boundaries of the college you're feeling safe, secured and happy. The companies of girls, at least if you find better ones, like I found. So yeah, I found few girls who let me grow and keep me engaging all throughout. So yes, hats off to those girls that those made me happy there. Because शुरू में मुझे ऐसा था, अरे मैं कहाँ आ गई एंड ऑल दैट. तो हाँ, you need to find some best companions in girls, so you'll be feeling satisfied and pretty happy. एक्टिविटीज़ कीप हैपनिंग देयर. आई थिंक सबसे ज़्यादा हमारे कॉलेज में ही होती है. हमारे कॉलेज का ऐसा है कि फर्स्ट सेमेस्टर यू नीड टू स्टडी डेडिकेटेडली एंड सेकेंड सेमेस्टर यू आर फ्री टू एन्जॉय. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हर इवेंट में, हर सोसाइटी में, फेस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एक्टिविटीज़ पर्सनली. एंड आई थिंक एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, मुझे बोला गया था कि कॉलेजेस में ट्रिप्स पिकनिक सॉर्ट ऑफ नहीं होते हैं, बट मेरे कॉलेज में होते हैं, व्हाट आई वुड से. मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के. दे कॉलेज हैज़ अनऑफिशियली हायर्ड अ ट्रैवल पार्टनर टू. एंड ऑल्सो मतलब trips you have chance if your parent allows. Girls trips you can have it, and also picnic, sometimes educational trips happens. So yes, you can make that too if your parent allows. uh, Things are these left over. Now I move out to the procedures. एक थिंग आई थिंक आप लोगों ने, अगर जो ड्यू में इंटरेस्टेड है, वो स्क्रॉल कर रहे थे उस टाइम पे, तो अभी जब रिजल्ट आया था
there was a ruckus around the platforms on media that result गलत आ गए ये वो. So I really don't know about it because personally मैंने वो चीज़ face नहीं करी अभी तक. But I think it is a government university and कुछ भी हो सकता है. So you should be mentally ready for that. बाकी लेफ्ट ओवर अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि व्हेन यू विल बी गेटिंग एंट्री इनटू योर कॉलेज वट एवर यू विल बी फेसिंग या जो भी चीज़ें होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई थिंक आप लोग एंटर करोगे यू विल बी आस्क्ड, मतलब मर्जी है आपकी, आप जैसे भी आना चाहो, बट आपको एक फीस स्लिप मिलती है जब आप अपने समर्थ के पोर्टल पे व्हेन यू पे द फीस यू विल बी गेटिंग, यू नीड टू गेट दैट प्रिंटेड. तो वो आपको फीस स्लिप मिलती है और वो आपको प्रिंट करके लानी होती है अपने साथ, उस पर अपना एक फ़ोटो लगा के एंड दे विल आस्क यू टू ब्रिंग. वो अपना स्टैम्प लगाएंगे उस पर फर्स्ट डे और उसके बाद अनटिल अनलेस यू गेट योर आईडी कार्ड्स यू विल बी आस्क्ड टू ब्रिंग दैट ओनली एंड वही आपको एंट्री एंड एग्जिट दिलाएगा. तो वो फीस स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो उसके फ़ी जैसे ही आप लोग पे करोगे जैसे आपको अलॉटमेंट हो जाएगी दे लास्ट यू फॉर फी सो दैट योर सीट विल बी एलोकेटेड टू यू एंड कन्फर्म. तो उसके बाद आप उसकी 5-6 कॉपीज निकाल लेना प्रिंट, बिकॉज फी स्लिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट until unless you get the ID card of your college. So that is the thing. And at least for my college, I don't know about other colleges, but yes, for mine this was the case. सो येस ये हुआ. फिर उसके बाद आपको एंट्री मिलती है फर्स्ट डे. प्रेफरेबली आई थिंक जनरली बच्चे एक नए फेज़ में एंटर करते हैं तो पेरेंट्स ज़्यादातर जाते ही हैं, तो वो रहेंगे तो बाकी चीज़ें आपके पेरेंट्स कर ही लेंगे. वैसे पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है और बच्चों का भी कोई रोल नहीं होता है. बच्चों को बस वो फीस स्लिप देंगे, दे विल स्टैम्प इट आउट एंड दे विल अलाउ यू टू मूव एंटर इनसाइड. एंड द अदर थिंग इज़ बहुत यूट्यूबर्स बोलते हैं आपकी कॉलेज में एंट्री होने वाले दिन आपके वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये होगा वो होगा. मुझे पता नहीं है दूसरे कॉलेजों में कैसे हुआ है, बट मेरे कॉलेज में दे डिडंट आस्क अस फॉर एनीथिंग बिकॉज हमने आई थिंक सब कुछ जो समर्थ की रजिस्ट्रेशन हुई थी उस पर हमने सब कुछ दिया था उन लोगों को. तो दे डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग. मैंने काफ़ी अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए बिकॉज मैं भी यूट्यूब पे उस टाइम देख रही थी. तो पीपल वर सेइंग कि यू विल बी नीडिंग कास्ट सर्टिफिकेट ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ उन्होंने बोला. मैंने सब कुछ इकट्ठा भी किया बट द कॉलेज डिडंट आस्क मी फॉर एनीथिंग. तो दैट वाज आई थिंक अच्छा ही था बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन वेरीफाइड हो चुका था. जब हमें एलोकेशन हुआ था उसके बाद हमने फ़ीस पे की थी. उसके बाद देयर वर प्रोसीजर, उसमें 10-15 दिन अप्रॉक्स लगे थे. फर्स्टली आई फाउंड कि वेरीफाइड बाय द कन्वीनर हुआ है, फिर वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल हुआ है, वेरीफाइड बाय द अथॉरिटी वगैरह एंड लास्टली यू वर एलोकेटेड. तो वो वेरीफाइड जो हुआ था आई थिंक उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स ही चेक करते हैं वो उस प्रोसीजर में. तो वो हमें ऑफलाइन नहीं मंगाएंगे इन LSR व्हाट आई एम सेइंग. बाकी कॉलेजों का मुझे नहीं है आइडिया बट आई थिंक सब कॉलेजों में यही होता है बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी विच फॉलो सेम थिंग्स. थोड़ा बहुत चेंज अलग बात हो जाती है बट वैसे चीज़ें मोस्टली सेम रहती हैं. तो ये होगा. उसके बाद यू विल गेट एंट्री. आप लोगों का ओरिएंटेशन होगा. ओरिएंटेशन हर कॉलेज का, ज़्यादातर कॉलेजेस मतलब कुछ एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बन जाते हैं जैसे साउथ कैंपस डिसाइड्स कि हम इस दिन ओरिएंटेशन करते हैं. ये नहीं होगा कि साथ साथ ओरिएंटेशन होगी, नहीं. ओरिएंटेशन हर कॉलेज की अलग अलग ही होती है बट वो डिसाइड करते हैं. जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं आई थिंक या तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच या पब्लिक बच्चे ज़्यादा होते हैं उस साइड, वो लोग जनरली कॉलेज के ऑडिटोरियम्स में नहीं करते, वो कहीं और भी करते हैं. उन्होंने कुछ जगहें ले रखी हैं हॉल्स वगैरह, वो लोग वहाँ भी करते हैं फॉर नॉर्थ कैंपस. साउथ कैंपस आई थिंक वो अपने कॉलेजों में ही करते हैं. हमारे भी कॉलेज में ही हुआ था. तो ऑडिटोरियम में जाओगे और फिर ऑडिटोरियम में यू विल गेट ओरिएंटेशन कि आपका क्या होगा. आपके प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करेंगे आपको कॉलेज एंथम एंड वगैरह वगैरह, वो सब आपको बताया जाएगा. दे विल नो यू आउट द लेगेसी ऑफ योर कॉलेज इन वट एवर द थिंग्स आर. उसके बाद यू विल बी गेटिंग योर टाइम टेबल इन फ्यू डेज और थॉट किस तरीके से आप लोग की कॉलेज की कमिटीज़ वर्क करती हैं. तो टाइम टेबल मिल जाएगा. देन यू विल प्रोसीड विद एवरीथिंग. वो आपको फर्स्टली वो आपको बोलेंगे एंटी रैगिंग फॉर्म. जब आपको ओरिएंटेशन की मेल आती है उस टाइम पर वो आपको एंटी रैगिंग फॉर्म फिल करने को बोलेंगे. एफिडेविट चाहिए होगा, उसको सबमिट करते हैं. दे आस्क यू टू सबमिट इट. हाँ, तो दे आस्क यू टू सबमिट इट. तो वो एक प्रोसीजर होता है, वो भी आपको पूरा करना होता है. वो जन मेरे कॉलेज ने गूगल फॉर्म फिल कराया था
फिर हमें आईडी कार्ड्स अलॉट हुए थे ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द मिड ऑफ द सेमेस्टर ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। तो हमें आईडी कार्ड्स अलॉट हुए थे। कई कॉलेजों में होता है कि आईडी कार्ड वैसे स्कूल टाइप्स नहीं होते हैं बिल्कुल, वो दे प्रोवाइड यू द कार्ड, बट एलएसआर में तो प्रॉपर स्कूल टाइप्स दे गिव यू द स्ट्रिंग एंड ऑल। तो वो चीज़ होती है। और उसके बाद दे आस्क यू टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द DU पोर्टल अगेन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पसेस ऑफ योर फर्स्ट सेमेस्टर। तो उसमें भी आपको सारे प्रोसीजर्स, उसमें आपको अपने सब्जेक्ट कोड्स के लिए आपको वेट करना होता है फॉर योर डेट शीट। सो प्लीज़ बी वेरी, आई वुड से बहुत कोशिश रहना। सब्जेक्ट कोड्स में बहुत प्रॉब्लम आती है और बहुत गलतियाँ हो जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में। ऑल्दो आई अवॉइडेड दैट, गॉड्स ग्रेस, फॉर्चुनेटली आई अवॉइडेड दैट, मेरा वैसा कुछ नहीं हुआ था, बट आई फेस्ड, मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ हुआ था ये। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अनटिल अनलेस आपकी डेट शीट रिलीज़ नहीं हो जाती है फाइनल वाली, DU पहले एक टेम्पररी डेट शीट रिलीज़ करता है, फिर एक फाइनल डेट शीट रिलीज़ करता है। तो फर्स्ट डेट शीट और सेकेंड डेट शीट आई थिंक आपके कॉलेज जब आपको बोले तब करना। बाकी LSR में यू कैन गो हेड विद टेम्पररी ऑल्सो। जब आपकी डेट शीट एक फुलफिल मतलब फाइनल डेट्स नहीं होती हैं, वो जनरली फाइनल डेट शीट बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं होती है, बट सब्जेक्ट कोड्स वही होते हैं जो आपके टेम्प्रेरी डेट शीट में आए हुए होते हैं। तो वंस द टेम्प्रेरी डेट शीट कम्स यू कैन गो अहेड विद दैट। और अगर किसी के मेरे सब्जेक्ट्स मैच कर जाएं, जब आप मेरे गूगल ड्राइव पे देखोगे मेरे सब्जेक्ट्स, तो इफ़ यू फाउंड एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स मैचिंग, वैसे तो कोड्स आई थिंक चेंज होते हैं, बट आई थिंक यू शुड गो अहेड विद द मार्कशीट वन। मेरे सब्जेक्ट्स पे मत जाओ बिकॉज माइट भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए उससे। तो यस, एक ये फॉर्म फिल करना होता है आपको, ये भी बहुत कॉशियस काम है। फर्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होता है, सेकेंड टाइम से इट विल गो स्मूथ। तो वो चीज़ होती है। और हाँ, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद फर्स्ट एक रिज़ल्ट का प्रोसेस, इट्स बिट डिलेइंग। जैसे मेरे आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हुए थे जनवरी में, एंड आई गॉट द रिज़ल्ट इन अप्रैल आई बिलीव, यस। तो थोड़ा सा स्पैन ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ऑल्दो आई थिंक बोर्ड्स का रिजल्ट भी यही वेटिंग होता है, बट ये इक्वल टू बोर्ड्स तो नहीं है, बट स्टिल दे टेक इक्वल टाइम। बच्चे ज़्यादा होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थिंक, तो इसलिए दे टेक टाइम। तो वो अप्रॉक्स 2 महीना उनको लगता है। और उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, कई सब्जेक्ट्स होते हैं जो थ्योरी ही होते हैं, कई दोनों भी होते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ। अब मैं आपको बताती हूँ कि NEP की चीज़ें क्या चल रही हैं। एक NEP की सबसे बड़ी चीज़ चल रही है इस टाइम, वो सबसे पहले अब मेरे जो फ़िलहाल एट प्रेजेंट, अब हम सेकेंड ईयर्स में आएंगे तो वो लोग थर्ड ईयर में आएंगे। हाँ, तो जो इस ईयर के थर्ड ईयर बच्चे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो बच्चे पहली बार अब फेस करेंगे, उन लोगों को ऑप्शन मिलेगा कि यू वांना एंटर इन द फोर्थ ईयर फॉर BA itself और you wanna leave after third year completion। तो ये एक चल रहा है कि if you do 4 year bachelor's then you can simultaneously next after completing the 4 years of bachelor's you will be getting a minor degree in the journal elective if you complete it for 7 semesters free consecutively। like मैंने journalism का जनरल इलेक्टिव चूज़ किया हुआ, दैट इज़ अ सब्जेक्ट। तो वो मैंने चूज़ किया हुआ है और मैं उसकी साइमल्टेनियसली 7 सेमेस्टर्स देती हूँ। 3 ईयर में 6 सेमेस्टर्स होते हैं। अगर मुझे 7 सेमेस्टर कंप्लीट करने हैं तो मुझे फोर्थ ईयर भी करना होगा, और फोर्थ ईयर करना है तभी मैं GE में अपने माइनर डिग्री ले सकती हूँ। तो when you will complete your fourth year you will be getting a minor degree in your journal elective subject department, and you will be getting a full degree of your bachelor's degree in the subject you were pursuing। तो 2 डिग्रीज हो जाती हैं if you compile complete your 4 years degree for bachelor's, and then you will be going ahead with a 1 year degree for masters। Okay, so this is the thing happening first time in Delhi University for our seniors, first thing। The second thing is NEP के बाद से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में रिलीज हुई थी, उस पॉलिसी के हिसाब से अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशंस चल रहे हैं ऑल्दो, बट सब्जेक्ट्स का कुछ वेरिएशन है, मैं आपको बताती हूँ। एक होते हैं DSC, जो होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, जो आपके
जो आप मेन परस्यू कर रहे हो, दीज आर फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट। जो बीए प्रोग्राम वाले होते हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं और वो मुझे पता भी नहीं है पर्सनली, बट मैं ये ऑनर्स वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ। तो एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर होते हैं, वो आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। जैसे आई एम परस्यूइंग पॉल साइंस, तो मेरे पॉल साइंस में 3 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे एक मेरा सेकेंड सेमेस्टर में इंटरनेशनल रिलेशंस था, एक मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और एक मेरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स था। तो ये मेरे पॉल साइंस के ही 3 सब्जेक्ट थे। तो ये हो गए मेरे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 1, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 2, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 3। तो 3 सब्जेक्ट ये हो गए एंड यू हैव 7 सब्जेक्ट्स इन टोटल। और तो 3 सब्जेक्ट्स आपके ये हो गए। उसके बाद यू कम टू योर जर्नल इलेक्टिव, अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग, कि माइनर डिग्री मिल जाती है इफ़ यू डू 7 सेमेस्टर्स द सेम डिपार्टमेंट का जर्नल इलेक्टिव, तो वो माइनर डिग्री मिल जाती है। तो इफ़ यू गो अहेड विथ, तो अब उसमें जर्नल इलेक्टिव में आई हैव जर्नलिज्म, तो मेरा जर्नलिज्म का माइनर डिग्री होगा। आई एम प्लानिंग टू परस्यू 4th ईयर, बाकी आई एम नॉट कन्फर्म लास्ट मोमेंट पे क्या चेंजेस होते हैं, तो वो तभी देखेंगे। बाकी अभी सीनियर्स का क्या एक्सपीरियंस रहता है उससे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन माय केस, बट आई एम लेटिंग यू नो कि जर्नल इलेक्टिव होता है जो जी होता है, उसमें आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 3 ही साल का करना है, दे आर अश्योर्ड कि हमें 3 ही साल की बीए करनी है, चाहे ऑनर्स हो चाहे प्रोग्राम हो। तो वो लोग मतलब सेम भी नहीं फॉलो करते, वो कभी जर्नलिज्म का ट्राई करेंगे, कभी हिस्ट्री का, कभी इंग्लिश का, कभी पॉल साइंस का जर्नल, तो वो चेंज भी करते रहते हैं, दैट्स अप टू देम। बट अगर किसी को माइनर डिग्री चाहिए तो दे नीड टू फॉलो द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इटसेल्फ। अब मैं जिससे कोशिश करूँगी कि मुझे 4th ईयर करना है, मुझे माइनर डिग्री चाहिए, तो फिर मुझे पूरा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर मुझे जर्नलिज्म ही लेना है टिल 7th सेमेस्टर, तो आई विल गेट अ माइनर डिग्री। अब मेरी फ्रेंड है, उसे उसे माइनर डिग्री नहीं चाहिए, सो शी टुक फर्स्ट सेमेस्टर में पॉल साइंस का, सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री का, थर्ड सेमेस्टर में शी माइट टेक फाइनेंस का, कॉमर्स का वगैरह वगैरह, वो चेंज होता रहता है। तो दिस इज़ फॉर जर्नल इलेक्टिव, दिस इज़ योर 4th सब्जेक्ट। वी मूव ऑन टू 5th सब्जेक्ट। 5th सब्जेक्ट इज़ वैल्यू एडिशन कोर्स। दिस इज़ सम सॉर्ट, इनकी आपको लिस्ट मिलती है एंड यू आर आस्क्ड टू चूज़ कि आपको कौन सा पढ़ना है। काफ़ी 15-20 सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑल्दो होते 40-50 हैं, बट जो आपकी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से द सब्जेक्ट्स दे आर थिंकिंग कि वो अपने कैंपस पे दे सकते हैं, वो वही अलाउ करते हैं आपको और वही लिस्ट देते हैं आपको। बट जैसे पर्सनली मेरे साथ हुआ था, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में आई वाज फीलिंग वेरी, मतलब मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई थी एकदम से कि आई फेल्ट कि हाँ कुकिंग का कोर्स करते हैं एंड बैक एंड अच्छा भी होगा और इन्जॉय भी करेंगे। बट बाद में जब अलॉट हुआ तो पता चला कि कुकिंग कॉलेज अलाउ नहीं करता है, तो कॉलेज की कैंपस में वो चीज़ें है ही नहीं। तो उस चीज़ की वजह से हमें नहीं मिला, फिर हमें कुछ और लेना पड़ा। तो वही चीज़ें हैं कि वो 40-50 में से आपको वही 20 देंगे जो वो अपने कॉलेज पे पढ़ा सकते हैं, तो उन्हीं में से आपको चूज़ करना होगा। तो ये हो गया आपका 5th सब्जेक्ट। Now we move on to 6th subject, which is SEC, which is Skill Enhancement Course. Okay, so Skill Enhancement Course में भी वही सेम चीज़ें हैं कि they'll ask you some, they'll give you a list, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ने तो 50 सब्जेक्ट्स करीब फाइनल किए हैं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी और हमारे स्पेसिफिक कॉलेजेस वो वही चीज़ें, वही सब्जेक्ट्स उसमें से उठाते हैं 20-25 जो वो ऑफ़र कर सकते हैं अपने कैंपस पे। तो ये होता है और उसके बाद फिर आपको उसमें से चूज़ करने होंगे एंड दे विल अलॉट यू। बाकी उसके बाद एईसी पे आते हैं। एईसी में इज़ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। एईसी में नहीं, alternative semester you need to study environmental science which is मतलब वो फोर्सफुली आपको पढ़नी है, आप चाहे पढ़ना नहीं चाहते बट वो आपको पढ़नी ही है। तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर अगर ईवीएस पढ़ी है तो आपको थर्ड सेमेस्टर में फिर से ईवीएस पढ़नी है। अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर में मतलब 5th सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ी है तो आपको 6th सेमेस्टर फिर से मतलब कुछ और चूज़ करना है। तो ये अगर या तो आपकी साइकिल वो सेक्शन वाइज होता है कि अगर 2 सेक्शन है पॉल साइंस के तो उन्होंने हमारे सेक्शन को पहले ईवीएस पढ़ाया था और दूसरे सेक्शन को पहले एईसी पढ़ाया था, तो ये होता है।
वो ऑल्टरनेटिव चलता है जनरली सेक्शन वाइज। तो ऐसे होता है, तो दे विल आस्क यू कि आपको, मतलब आस्क नहीं करते हैं जनरली, वो पूरे सेक्शन को वही सेम चीज़ अलॉट करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपने ईवीएस पढ़ी तो सेकेंड सेमेस्टर दे विल आस्क यू टू चूज। सेकेंड सेमेस्टर में जो चूज़ करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं कोर लैंग्वेजेस। जैसे किसी को संस्कृत पढ़नी है, किसी को हिंदी पढ़नी है, किसी को उर्दू पढ़नी है, किसी को बंगला पढ़नी है, किसी को पंजाबी पढ़नी है, किसी को कोई भी लैंग्वेज, मतलब कुछ भी पढ़नी है। तो जो भी कोर लैंग्वेजेस आप पढ़ना चाहते हो वो आप एईसी में पढ़ सकते हो। बाकी उसमें भी यही है कि हमारे गवर्नमेंट ने तो हमें वही 22-21 लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट हैं वो सब लिखी हैं। बट जो कॉलेज ऑफर कर सकता है, कॉलेज आपको वही लिस्ट प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज एईसी में ये है कि दे अलाउ यू to move out of your college and go in other college which is offering your language and attend the class in that college and then come back to attend other classes। जैसे ये टाइम टेबल, बट वो टाइम टेबल इस हिसाब से नहीं बनाते हैं। जैसे पर्सनली मुझे था कि मैं इस बार कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ती हूँ, जर्मन या फ्रेंच या कुछ, बट नहीं हो पाया क्योंकि मेरा कॉलेज ऑफर नहीं कर रहा था और मुझे बोला गया कि आप दूसरे कॉलेज चले जाओ। बट मेरा एक सब्जेक्ट एईसी का था, उसमें मैं दूसरे कॉलेज जाती, उससे पहले मेरा एक पीरियड है, तो मुझे पढ़ना है, उस क्लास को मुझे लेना है। फिर मुझे अगले पीरियड में मेरा एसी, मुझे दूसरे कॉलेज जाना है, 1 घंटे का पीरियड होता है, गैप बिल्कुल भी होता नहीं है। तो अब आप 1 घंटे में ही आपको पढ़ना भी है, दूसरे कॉलेज भी पहुंचना है, फिर आपको वापस भी आना है 1 घंटे के अंदर, तो आपकी कितनी क्लास हो पाती है। तो वो फिर आपको थर्ड, उसके अगला पीरियड आपका फिर से, तो यू कांट, आप नहीं कर सकते। तो वो टाइम टेबल उस हिसाब से नहीं बनाते हैं। वो आपको ऑप्शन ज़रूर देते हैं कि आप जा सकते हो दूसरे कॉलेज। अगर आपको कॉलेज बिल्कुल ये है कि नेक्स्ट बिल्डिंग ही है तो यू कैन गो। जैसे नॉर्थ कैंपस में दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर ऑल द कैंपसेस, बट साउथ कैंपस में ऐसा नहीं है। साउथ कैंपस में कॉलेजेस थोड़े डिस्टेंस पे हैं, तो यू कांट। तो ये चीज़ है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं कई बार। तो इफ़ यू आर इन साउथ कैंपस वो मुश्किल ही हो पाएगा। तो फिर आपको जो भी आपको कॉलेज ऑफर कर रहा है आपको वही चीज़ें फॉलो करनी होंगी, मतलब इधर ही हिंदी और संस्कृत और एक दो जो बहुत ही कॉमन लैंग्वेजेस हैं वो तो पढ़ाई देते हैं वो अपने कैंपस पे। बाकी जो बहुत दूर अलग अलग होती है ना, जैसे उड़िया, असमीज, ये वो थोड़ी सी उन्हें दूसरे कैंपस भेजना ही पड़ता है, फिर लेनी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं एईसी में, दे ऑफर यू। तो लास्ट में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। दीज आर 7 सब्जेक्ट्स, 3 DSCs you have, um, 1 GE, 1 WAC, 1 SEC and 1 AEC you have. These are the 7 subjects which you will be having in every semester. And DSC, which are the specific course of your particular subject which you are pursuing, वो आपको सिलेबस में मिल जाएंगे। बाकी आपको हर सेमेस्टर जीई चूज़ करना है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको अगर माइनर डिग्री करनी है तो आप साइमल्टेनियसली वही वही चूज़ करना पड़ेगा हर बार। बट अगर आपको नहीं लेनी है माइनर डिग्री तो आप कभी भी कुछ भी चूज़ कर सकते हो। सेम गोज़ विद वैक, सेम गोज़ विद एसईसी एंड एईसी का मैंने आपको बता दिया है कि वो एक सेमेस्टर आपको ईवीएस पढ़ाएंगे 1 साल में, और एक सेमेस्टर आपको कोई लैंग्वेज पढ़नी होगी। तो ये सब्जेक्ट्स का मैटर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एनईपी के अंडर ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो यस, दिस वाज ऑल। आई थिंक आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। और अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम्स के बारे में भी बताना चाहती हूँ। तो एग्ज़ाम्स का कुछ ऐसे है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई थिंक मैं अपना बता देती हूँ पर्सनली, बिकॉज आई कम्यूट 2 hours एवरी डे, 2 hours फ्रॉम वन साइड, सो इट गोज 4 hours फॉर अ डे। और जिसमें कि क्लास होती है 8:45 एंड यू लीव आउट फ्रॉम द कॉलेज एट 5:30। तो द एंटायर डेज गोज आउट ऑन कैंपस। तो कॉलेज में अगर ब्रेक है पीरियड्स के बीच में तो यू कैन स्टडी देयर, अदरवाइज यू आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन। तो हाँ, एक थोड़ा सा लाइब्रेरी का भी क्रंच रहता है, स्पेसेस कम हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में लाइब्रेरी के अंदर भी, मतलब हाँ, तो थोड़ा सा क्रंच रहता है। बट स्टिल अगर किसी को पढ़ना है वो क्लासेस में भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। बट वो आपकी कैचिंग पावर के ऊपर भी होता है कई बार। तो मैं पर्सनली, मैं सोल, एक होता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वो दिल्ली के बच्चे
जो DU के स्पेसिफिक बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया होता है बट दे डोंट वांट टू गो कॉलेज, वो प्राइवेट करना चाहते हैं। प्राइवेट मीन्स वो रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हैं बट वो पेपर दे देते हैं तो दे गेट द डिग्री। तो वो सोल वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनका मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल होता है जनरली। तो वो मटेरियल से मैं पढ़ती हूँ, वो सिंपल होती है और वो सिंपल मटेरियल होता है वो, और उससे यू कैन रीड आउट। एंड बाकी जो आपके प्रोफेसर्स आपको रीडिंग्स देंगे आप वो पढ़ सकते हो, तो दैट्स वेरी बेटर, वो अच्छा रहेगा, तो वो आप कर सकते हो। और लास्टली फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली और कोर्स वाइज, तो वो आप ले लो एंड लास्ट में यू कैन गो। एटलीस्ट आई वुड से दिल्ली यूनिवर्सिटी की चेकिंग बहुत अच्छी है, दे आर बेटर इक्वलाइजर्स देन CBSE। तो वो मतलब एक चीज़ ये है कि जैसे अभी आप स्कूल में 5 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्स तक मैक्सिमम जाते हैं हम 12th ग्रेड में हिस्ट्री में, तो ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रही हूँ, तो 8 मार्क्स तक हम मैक्सिमम जाते हैं। बट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी या कॉलेज, आई थिंक किसी भी कॉलेज में जाओगे तो यही होगा, you have 15 marks का question, you have 18 marks का question, you have 5 marks का question, you have 10 marks का question। तो this is the biggest thing। और पेपर भी जो DSCs होते हैं वो 90 मार्क्स के होते हैं, जो GE होता है वो भी 90 मार्क्स का होता है, और कई GE में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। और जो SEC और WAC होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं, और जो AEC होता है उसमें EVS 30 मार्क्स का होता है, और जो आपका लैंग्वेज होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है जनरली। तो हाँ, आपको क्वेश्चंस कम मिलेंगे बट उसके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो इफ़ यू आर हैविंग अ क्वेश्चन ऑफ 18 मार्क्स विच इज़ DSC में ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस 18 मार्क्स के ही होते हैं, तो उसमें आपको 18 मार्क्स के लिए एटलीस्ट यू नीड टू राइट 4 to 5 पेजेस एटलीस्ट। दिस इज़ द थिंग, 4 to 5 पेजेस आर नेसेसरी टू गेन मार्क्स, ठीक है। उसके लिए आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए। तो ये एक सीक्रेट है कि कंटेंट आई थिंक आप उससे रिलेटेड भी लिख दोगे ना तो यू विल गो थ्रू। DU में आप यू विल पास इट आउट। पहले मतलब ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल हवा में ही कुछ लिख जाओ, वो तो नहीं होना चाहिए, बट येस अगर आपको थोड़ा भी उस चीज़ टॉपिक का आइडिया है यू कैन गो थ्रू इट, थोड़ा सा पढ़ लो उसको, अपनी लैंग्वेज में इन्हांस करो एंड यू कैन राइट इट। डायग्राम्स इंक्लूड करो, अंडरलाइनिंग करो, दीज आर द बेस्ट थिंग्स पॉसिबल यू कैन डू, एंड इसी में यू विल स्कोर गुड मार्क्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ ग्रेट इक्वलाइजर, आई एम अगेन कोटिंग इट। तो किसी ने अगर, जैसे आपने अगर 5 पेजेस लिखे और किसी ने 4 लिखे, माइट बी कि वो इक्वल हो आपसे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ एन इक्वलाइजर, इस बात में कोई शक नहीं है। और दे नेवर, आई थिंक मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट से ये नहीं लगा कि वो कभी भी 7 CGPA से कम और 9 से CGPA से ज़्यादा देते हैं। 9 से ज़्यादा कई बच्चों के, कई तो नहीं बट हाँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं मच मोर टैलेंटेड देन मी स्पेसिफिकली, तो वो बच्चों का आ जाता है 9 से ऊपर। बट मीडियम बच्चे जो होते हैं, वो जो 9 से ऊपर वाले बच्चे होते हैं वो 18 मार्क्स में एटलीस्ट 10 to 11 पेजेस लिख के आते हैं, तो वो आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझ जाओ तुम किस कैटेगरी में हो, इस बात से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो जो 4 से 5 लिखते हैं तो वो आराम से 7 से 9 के बीच में रहेंगे, जो उससे भी ऊपर लिखते हैं दे आर 9 से ऊपर वाले बच्चे, राइट, ठीक है। तो ये रहता है ग्रेडिंग का भी, और वो मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करते हैं आपको। जो आपके कॉलेज में इंटरनल मार्क्स मिले वो आपको पता चल जाएंगे, आपके कॉलेज वाले बता देते हैं, बट वो आपको थ्योरी के मार्क्स जो आप पेपर में लिख के आए हो वो आपको नहीं डिस्क्लोज करे जाते हैं, ठीक है। बाकी CBSE जैसा ही पैटर्न है उसका भी, फिर अगर आपके रिजल्ट में आपको लग रहा है कि आपके और ज़्यादा आने चाहिए थे, यू क्वेश्चन आउट, वो आपको फीस मांगते हैं हर क्वेश्चन की और ओपनिंग की वगैरह वगैरह, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट, व्हाट आई वुड से। तो हाँ ये चीज़ें हैं, तो ऐसे ही होता है कॉलेज में। आई थिंक दिस वॉज अ ग्रेट इंसाइट फॉर यू ऑल, एंड anything else, if you want, you can query out in the comment section. This side, the Studies Girl signing off. Please do like, share, subscribe to my channel and spread it all around.